بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لاکھوں درود و سلام مصباح ہستی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اللہ رب العزت نے اپنے وعدے کی تکمیل کرتے ہوئے اس پاک سرزمین کے دروازے مسلمانوں پر کھول دیے اور اس خطے کے رہنے والوں کو دعوت اسلام کا پیغام سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے۔ مسلمانوں کے خلیفہ کے فیصلے کے مطابق اے سلمان، تمہیں مدائن کا حاکم مقرر کیا جا رہا ہے، کیونکہ تم بھی اہل مدائن کی طرح فارسی زبان بخوبی جانتے ہو۔ اہل فارس بھی تمہاری خاطر اپنے دل کھول دیں گے۔ دعا ہے کہ ہمارا پروردگار تمہیں اور تمام اہل اسلام کو کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرمائے، آمین۔ اے مدائن کے لوگو، اے مدائن کے لوگو، غور سے سنو، خلیفہ مسلمین دویم کی جانب سے ایک پیغام آیا ہے۔ اے مدائن کے لوگو، غور سے سنو، خلیفہ مسلمین دویم کی جانب سے ایک اہم پیغام آیا ہے سب کے لیے۔ مدائن کے لوگو غور سے سنو، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے وعدے کی تکمیل کرتے ہوئے اس پاک سرزمین کے دروازے مسلمانوں پر کھول دیے اور اس خطے کے رہنے والوں کو دعوت اسلام کا پیغام سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ ان مع العسر یسرا، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے۔ مسلمانوں کے خلیفہ کے فیصلے کے مطابق اے سلمان، تمہیں مدائن کا حاکم مقرر کیا جا رہا ہے، کیونکہ تم بھی اہل مدائن کی طرح فارسی زبان بخوبی جانتے ہو۔ اہل فارس بھی تمہاری خاطر اپنے دل کھول دیں گے۔ دعا ہے کہ ہمارا پروردگار تمہیں اور تمام اہل اسلام کو کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرمائے۔ نہیں، ابھی تک کوئی خبر نہیں۔ ابو سلمان مدائن کے حاکم بن گئے ہیں۔ یہ تو بہت اچھی خبر ہے۔ میں نے ابھی سنا ہے۔ خدا کا شکر ہے، یہ انتخاب تو واقعی اچھا ہے۔ کیا نام بتایا؟ سلمان؟ یہ نام تو سنا سنا لگتا ہے۔ اتفاق کی بات ہے، میں نے آج تک انہیں دیکھا نہیں۔ دیکھا ہوگا، بھول گئے ہو شاید۔ لیکن کہاں؟ مدائن کے محاصرے کے وقت۔ محاصرے کے وقت؟ یاد نہیں؟ یہ وہی سلمان ہے جس نے تیرتے ہوئے ایک بڑا دریا عبور کیا تھا تاکہ اسلام اور رسول خدا کا پیغام لوگوں تک پہنچایا جا سکے۔ اس کے انداز گفتار نے لوگوں کے دلوں پر کافی اثر کیا تھا۔ ہاں بالکل، یاد آ گیا۔ بڑا آدمی ہے وہ، بہت، اور ایک بہترین عالم بھی۔ اور وہ رسول خدا کا پسندیدہ شخص بھی رہ چکا ہے، اتنا پسندیدہ کہ رسول خدا نے کہا سلمان ہم میں سے ہے۔ میں نے تو یہاں تک سنا ہے کہ علی ابن ابو طالب انہیں حکیم لقمان سے تشبیہ دیا کرتے تھے۔ ہاں بالکل ایسے ہی ہے۔ ماہان، کیا کوئی اندازہ ہے کہ سلمان کب تک پہنچیں گے مدائن؟ خیال ہے
कुछ दिनों तक पहुंच जाएंगे। मतलब ये कि हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं, हमें इस शहर को उसके इस्तकबाल के लिए तैयार करना होगा। ऐसा इस्तकबाल जो पहले कभी नहीं हुआ, उसके मर्तबे के मुताबिक शानदार अंदाज से। बिल्कुल, जितना जल्दी हो सके हमें उनका महल भी तैयार करना होगा। और मैं अपना बेहतरीन घोड़ा उनकी खिदमत में पेश करूंगा। महल को जल्द अज जल्द नए हाकिम की आराम और आसाइश के लिए अच्छी तरह तैयार करो। फौरन जाओ। ज़ादान कहाँ है? ज़ादान, ज़ादान। कहिए मालिक, मैं यहाँ हूँ, बस अभी आया। जाओ कपड़ा फरोश से अपने लिए नए लिबास का इंतजाम करो। हमें चंद रोज में मदाइन के नए हाकिम के इस्तकबाल के लिए जाना होगा। जी मालिक। जरा संभाल के। तुम ये क्या कर रहे हो? इन्हें जरा एहतियात से लगाओ। इन फूलों को कहाँ रखूं? यहाँ रख दो। उम्मीद करता हूँ कि ये देखकर सलमान बहुत खुश होंगे। इंशाअल्लाह। रोज़बे, इधर आओ और देखो हाकिमों का इस्तकबाल किस तरह किया जाता है। एक चीज और, अपनी आंखें अच्छी तरह से खुली रखना और यहाँ जो भी चीज देखो उसे अपने दिमाग में बिठा लेना। जनाब, महान साहब आ गए। वाह, कितना शानदार घोड़ा है। जिसके बारे में मैंने बताया था ये वही है। वाकई खूबसूरत है और बेहतरीन है सवारी के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये घोड़ा हाकिम को पसंद आएगा। क्यों नहीं, जरूर पसंद आएगा। मैंने देख लिया, दूर से कोई इस तरफ आ रहा है। सब लोग तैयार हो जाएं। अच्छी तरह देखकर बताओ कितना बड़ा काफिला है। वो तो एक बूढ़ा किसान है। तुम्हें बूढ़े किसान से क्या लेना? उसे देखो जिसके साथ सिपाहियों का लश्कर और साजो सामान मौजूद हो। ए मुसाफिर, हमें बताओ तुम किस तरफ से आ रहे हो? जुनूब की तरफ से। क्या तुम्हें आते हुए कोई बड़ा लश्कर या काफिला नजर आया? नहीं। किस काफिले का पूछ रहे हो? काफिला मदाइन के नए हाकिम सलमान का। सलमान? मुझे नहीं लगता कि सलमान को ऐसी चीजें और शान और शौकत पसंद आएंगी। कैसे कह सकते हो? क्या तुम उसे जानते हो? जानता हूं। सलमान मैं ही हूं। हाँ? आली जनाब, क्या मदाइन के हाकिम आप ही हैं? हाँ, मैं ही हूं। अरे क्या सुना नहीं, यही मदाइन के नए हाकिम हैं। खड़े मुंह क्या देख रहे हो? ताजीम करो और अपने सर नीचे झुकाओ। ऐसा ना करना। ये तुम लोग क्या कर रहे हो? सीधे खड़े हो जाओ। तुम सब मुझ जैसे इंसान के आगे क्यों झुकते हो? क्या तुम लोग नहीं जानते कि अल्लाह ने इस्लाम की बरकत से तुम्हें जालिम और जाबिर हुक्मरानों से निजात दी है? तुम्हें चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ अपने रब के आगे सर झुकाओ। मैं तो अल्लाह का सिर्फ एक हकीर बंदा हूं। उसी ने मुझे सीधी राह दिखाई। इससे पहले मैं भटका हुआ गुलाम था। मुझे अपने रब की तलाश थी और ऐसे में मैंने पैगंबर इस्लाम के जरिए से रब को पहचाना। उसी रब ने मुझे गुलामी से आजादी दी और अब ये सलमान सिर्फ अल्लाह के आगे झुकता है। ऐसे शानदार इस्तकबाल का हकदार सलमान नहीं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है कि जिंदगी को इंतहाई सादगी के साथ गुजारा जाए। इन सब चीजों से इंसान की शान और शौकत में कोई इजाफा नहीं होता। सुन लो लोगों, मेहमान नवाजी अच्छी चीज है, लेकिन हैसियत से ज्यादा मेहमान नवाजी हुक्मरानों को अच्छे हाकिम बनने की बजाय बिगाड़ देती है। आकाए दो जहां रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते तो क्या ना पाते, इसके बावजूद पूरी जिंदगी सादगी से गुजार दी। इसलिए हमें भी चाहिए कि हम सब अल्लाह के रसूल जैसी जिंदगी गुजारें।
आली जनाब, हमें माफ कर दीजिए। हम सब लोग नए नए मुसलमान हुए हैं, इसीलिए रसूल खुदा के तर्ज हयात के बारे में ज्यादा नहीं जानते। आली जनाब, सदियों से ये लोग जालिम बादशाहों के जुल्म और सितम सहते आए हैं, लेकिन जब हमने सुना कि आप जैसी हस्ती को मदाइन का हाकिम मुकर्रर किया गया है, तो सबने बहुत ही खुशी के साथ आपके इस्तकबाल के लिए यह एहतमाम किया था। क्या आप बताना पसंद करेंगे कि आपका साजो सामान कब तक पहुंचेगा? मैं अपना सारा सामान अपने साथ ले आया हूं। आली जनाब, माफ कीजिएगा, लेकिन इस मुख्तसर से सामान के साथ आपका गुजारा मुश्किल नहीं होगा। जिंदगी गुजारने के लिए मेरा ये सामान बहुत है। तुम खुद देख लो, कुरान पाक, मेरी तलवार, दस्तरखान और पानी के लिए सुराही। कोई हाकिम इन चीजों के साथ कैसे जिंदगी गुजार सकता है? तुम्हारा नाम क्या है बेटे? मेरा नाम रोज़बे है। कितने साल के हो तुम? 9 साल का। मैं जब छोटा था तो मेरा नाम भी यही था। शायद तुम्हारी ही उम्र का था मैं। क्या वाकई? हाँ बेटा, लेकिन बाद में अल्लाह के रसूल जिन पर मैं दुरूद भेजता हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने मेरा नाम सलमान रखा। कितना खूबसूरत नाम है। जब पहली बार उन्होंने मुझे सलमान कह के पुकारा, वो मेरी जिंदगी का बेहतरीन दिन था बेटा। जब भी मुझे इस नाम से पुकारा जाता है तो मुझे वो दिन याद आ जाता है। आपने मुझे अल्लाह के रसूल के बारे में बताया और ये भी कि हम अल्लाह के बंदे हैं। हमें अल्लाह के अलावा किसी के आगे सर नहीं झुकाना चाहिए। शाबाश। अच्छा ये बताओ, क्या तुम अल्लाह के नेक बंदे बनना चाहते हो? जी बिल्कुल। तो आज से तुम्हारा नाम अब्दुल्ला है मेरे बेटे। अब्दुल्ला? ये नाम मेरी तरफ से तुम्हारे लिए तोहफा है। जानते हो इसका क्या मतलब होता है? नहीं जानता। इसका मतलब होता है अल्लाह का बंदा, और पैगंबर इस्लाम के वालिद का नाम भी अब्दुल्ला ही था। ये नाम तो बहुत अच्छा है। आपका बहुत शुक्रिया। तुम एक अच्छे और ज़हीन बच्चे हो। क्या तुम मुझे वो रास्ता बता सकते हो जो मस्जिद की जानिब जाता है? मस्जिद का रास्ता उस तरफ है। ये सारा खाना मिस्कीनों में बांट दो, उन्हें इसकी ज्यादा जरूरत है। मैं अपना खाना साथ लाया हूँ। शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा आप मुझे ये बताएं कि आपने अल्लाह के रसूल को देखा है? हाँ, अल्लाह के फजल से कुछ वक्त गुजारा है उनके साथ। मैं उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानना चाहता हूँ। क्या नजाशी को जानते हो तुम? नहीं, मैं नहीं जानता। नजाशी हबशा के बादशाह का नाम था। ये 30 बरस पहले की बात है। वो भी तुम्हारी तरह पैगंबर के बारे में जानना चाहता था। ये वो वक्त था जब बुत परस्त कुफ्फार के जुल्म और सितम से परेशान होकर कुछ मुसलमान हबशा में पनाह लेने पर मजबूर हुए। जब वो दरबार पहुंचे तो नजाशी ने उनसे सवाल किया। पता है किससे? हजरत जाफर से, जो काफिले के सरदार थे। सवाल पैगंबर के बारे में था। तो उन्होंने क्या जवाब दिया? जाफर ने उससे कहा, पैगंबर इस्लाम हम में से एक हैं। वो अल्लाह के रसूल और सादिक व अमीन हैं। उन्होंने हमें तौहीद की तरफ बुलाया और बुतों की इबादत से मना किया। और बेटा अब्दुल्ला, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि अल्लाह एक है और कोई उसका शरीक नहीं। सिर्फ वही इबादत के लायक है। हमारे सर उसी के आगे झुकने चाहिए। अल्लाह और उसके रसूल चाहते हैं हम अमानतदार और सादिक रहें। अपने हमसायों के साथ खुश अखलाकी से पेश आएं। ऐसे काम न किए जाएं जो दूसरों को तकलीफ दें। गुनाहों से दूर रहें और दूसरों का हक न मारें। जनाबे अली, वो रही मस्जिद। फिर आगे क्या हुआ? क्या तुम जानते हो ये घर किसका है बेटे? इस घर में बरसों से कोई नहीं रहता। इसके मालिक ने दूसरा घर खरीद लिया है। क्या तुम इस घर के मालिक के पास मुझे ले जाओगे? आप क्यों जाना चाहते हैं? इसलिए कि मैं इस घर को खरीदना चाहता हूँ। क्या ये घर? लेकिन हाकिम तो महलों में रहा करते हैं। अल्लाह के हकीर बंदे महलों में नहीं रहा करते हैं बेटा। एक काम करोगे? इस घर के मालिक को ढूंढने में मेरी मदद करो। इसके बदले में तुम्हें इनाम मिलेगा।
मैं तुम्हें वो सारी बातें बताऊंगा जो तुम मुझसे जानना चाहते हो, यानी रसूल खुदा की बातें। जी मैं आपका ये काम जरूर करूंगा। अगर तुम चाहते हो कि हम दोस्त रहें तो आइंदा ऐसा मत करना। अल्लाह का बंदा सिर्फ अल्लाह ही के आगे झुकता है और यही रब्बे करीम का हुक्म भी है। तुम भी तो मेरी तरह अल्लाह के बंदे हो। मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको नाराज नहीं करना चाहता था। अब्दुल्ला, अगर मैं ये घर खरीदने में कामयाब हो गया तो मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें एक तोहफा दूंगा, बहुत खास तोहफा। लेकिन तोहफा तो मुझे आपसे मिल गया है। तोहफा मिल गया? हाँ, तुम्हारा नाम अब्दुल्ला। आज से मेरा नाम रोज़बे नहीं अब्दुल्ला है। अब्दुल्ला 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 अब्दुल्ला। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम मेरे बेटे। क्या कर रहे हो तुम यहाँ? आप आराम कीजिए, मैं बाद में आता हूँ। नहीं नहीं, रुको। अब्दुल्ला, मुझे अपना वादा अच्छी तरह से याद है। आओ मेरे साथ, आ जाओ। क्या तुम ये बात जानते हो अब्दुल्ला कि खाना काबा किसने तामीर किया और हम किस तरफ रुख करके नमाज पढ़ते हैं? नहीं, नहीं जानता। तो आओ, आज मैं तुम्हें खाना काबा के बारे में बताता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजारों बरस पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत के अजीम पैगंबर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जिन पर अल्लाह का दुरूद सलाम हो, उन्हें ये कहा गया कि अल्लाह वादहू ला शरीक की इबादत के लिए जमीन पर अल्लाह का घर तामीर किया जाए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने एक मैदान का इंतखाब किया जो चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ था, और फिर उन्होंने उस मकाम पर अल्लाह का घर बनाना शुरू किया। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम ने काबे की दीवारों को खड़ा कर लिया तो आसमान की तरफ अपने हाथ उठाकर ये दुआ की, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐ अल्लाह, इब्राहीम और इस्माईल ने तेरे हुक्म की तामील की। ऐ रब्बे काबा, इस मकाम को अमन का गहवारा बना। ऐ रब्बे करीम, यहाँ के रहने वालों को जो तुझ पर और क़यामत पर ईमान रखते हैं, या अल्लाह, उन्हें ईमान की दौलत से माला माल फरमा। आमीन। दुआ कबूल हुई और देखते ही देखते कुछ ही अरसे बाद वो मैदान आबाद हो गया और वो मकाम अरबिस्तान के बड़े शहरों में से एक शहर बन गया। हाँ मेरे बेटे, लोग हर साल करीब और दूर के शहरों और मुल्कों से खाना काबा की जियारत के लिए मक्का आने लगे। बड़े बड़े कारवान बहुत से मुसाफिरों के साथ आते और खाना काबा की जियारत करते।